Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Libra Ascendant and the predictions for the month of September 2023. So for your ascendant, the ascendant lord Venus is going to be in the 10th house of profession, and when compared with the month of August when Venus was in a retro position, in the month of September Venus is going to turn direct. So the stagnation that you are feeling at the workplace will go away, and this phenomena of Venus turning direct from 4th of September will see you getting success at the workplace. There is also going to be an opportunity for you to get a new job in this month or a promotion at the workplace, and your actions will see a reward at the workplace. Time frame from 4th of September to 1st of October is going to be exceptionally good from the profession perspective, and whether you are a person who is looking for a job and currently do not have a job, or if you are already holding one and looking for gains in the profession, irrespective of whatever your situation is, this month is going to be very fruitful for you on the professional front. Jupiter is the owner of the sixth house and rules over services as well as the houses of disease, and it is combining with Rahu in the seventh house. So this situation is going to create stress in your marriage or in your partnership business. You also need to take good care of your health, especially in the last week of September. So time frame from 27th of September to 1st of October is something when you need to pay attention to your dietary habits. On the positive side, sixth house is also the house of debts, and if you are planning to avail any kind of a credit facility or planning to borrow money from a bank, then time frame from 27th September to 1st of October is also a very good time to do so. If you are planning to start a new business, then this month is a good time to initiate your journey in the field of business. Saturn is currently transitioning through the fifth house and is a highly benefic planet for you. Saturn also owns the fourth house of domestic happiness, and time frame from 15th to 21st of September is going to be very fruitful for you to enjoy the domestic harmony. There will be an opposition of Saturn and Sun in the first half of September. So you need to avoid arguments with your kids, especially from 1st to 16th of September. People who are interested in speculation, the best time for them to earn money from the stock market is from 22nd to 26th of September. And for students, the best time to appear for competitive exams is also the same. So if they appear for any kind of a competitive exam between 22nd to 26th of September, the chances of them clearing this is fairly high. Ketu is transitioning through your first house and it is going to stay here till the end of October. It means that you should not discuss your personal life and financial holdings with anyone, and neither should you talk about your problems with people outside your immediate family. Key to handle this tricky placement of Ketu is to feed a black dog on every Wednesday. Sun is going to be in your 11th house till 16th of September and will create opportunities of gain. Time from 5th to 7th of September is a very good time from the cash flow perspective, but the source of this cash flow will be mainly from the professional arena for you. So if you look overall, the placement of planets is fairly good, and this month should be a great month for you, especially for all those people who are very ambitious. They will see growth in the professional perspective. So I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching my video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुला लग्न के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, आपके लग्न के लिए लग्नेश शुक्र दशम भाव से भ्रमण करते रहेंगे, जो कि एक पूर्ण जल राशि है यहाँ पर, जिसमें कि शुक्र को काफ़ी अच्छा अनुभव आता है। तो यहाँ पे अगर हम अगस्त की बात करें तो उस समय शुक्र वक्री थे, तो लग्नेश वक्री होने की वजह से कार्यस्थल पे आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाना चाह रहे थे आगे, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी। तो वो चित्र अब सितंबर से बदल जाएगा। सितंबर में आपका 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो जाएंगे, और यहाँ पर मार्गी होने की वजह से कार्यस्थल पे आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आप इस समय में कोई भी नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या आप अभी बेरोजगार हैं और आप नया जॉब शुरू से ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा है और हर तरह से आपको आपके कार्यस्थल पे तरक्की देता हुआ आपको दिखेगा। 4 सितंबर से 1 अक्टूबर तक का समय
2023 का सबसे अच्छा समय होगा कार्यस्थल पे प्रगति की दृष्टि से। और ये महीने में आपको जितने रिजल्ट प्रोफेशन की लाइन में मिलेंगे उतने किसी और सेक्टर में आपको नहीं मिलेंगे। गुरु आपके लिए षष्ठेश बनते हैं और ये षष्ठ भाव से दिखाने वाली चीजें यानी कि बीमारियां, नौकरी, ये सब चीजों को आप गुरु के प्रतिनिधित्व में मानेंगे। और ये अभी सप्तम भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं। तो सितंबर के महीने में गुरु राहु का जो योग बनेगा ये आपके शादीशुदा जीवन में तनाव लाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी तनाव होता हुआ महसूस होगा। यहाँ पे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और सितंबर का जो आखिरी हफ्ता है यानी कि 27 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक का समय, उसमें खास करके आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप क्या खाते पीते हैं, यानी कि आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जो एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है छठवें भाव के स्वामी का यहाँ पर बैठे होने राहु के साथ, वो ये है कि अगर आप कहीं से भी उधार लेना चाहते हैं, कोई भी तरह का लोन लेना चाहते हैं बैंक के थ्रू या एनबीएफसी के थ्रू वगैरह, तो उसके लिए 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वो भी सितंबर के महीने में आप कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश दशम में है और गुरु भी सप्तम भाव में व्यवसाय के भाव में बैठे हुए हैं और सीधे लग्न स्थान को देख रहे हैं और लाभ स्थान को भी देख रहे हैं पांचवी दृष्टि से। तो बिजनेस स्टार्ट करने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय है। शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। आपके लगने के लिए शनि योग कारक होता है, क्योंकि एक केंद्र यानी चतुर्थ और एक त्रिकोण पंचम भाव को वो रूल करता है। और शनि आपके घर के वातावरण पर भी अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो सितंबर के महीने में 15 से 21 सितंबर तक का समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने घर वालों के साथ समय एंजॉय करना चाहें या आप मानसिक शांति चाहते हैं तो भी 15 से 21 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 से 16 सितंबर तक के समय में शनि और सूर्य की प्रतियुति हो रही है, तो इसका प्रभाव आपके पंचम भाव पे पड़ेगा। और पंचम भाव से आप अपनी संतति को देखते हैं, तो ये पहले 16 दिन खास करके अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं या उम्र में बड़े हैं तो उनके साथ वाद विवाद को टालिए और एक डिप्लोमेसी की राह पकड़िए, क्योंकि इसमें आपके बच्चों के साथ विवाद होने की भरपूर संभावना है। आप लोगों में से जितने भी लोग स्पेकुलेशन में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट्स में पैसा कमाने की दृष्टि से 22 से 26 सितंबर का समय सबसे अच्छा है। और अगर आप छात्र हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाह रहे हैं सितंबर के महीने में, तो उसके लिए भी 22 से 26 सितंबर तक का ही समय सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। केतु आपके लग्न स्थान में पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से बैठा हुआ है और अक्टूबर एंड तक केतु यहीं बैठा रहेगा। तो लग्न स्थान से केतु का जाना यानी कि आपको अपने जो पर्सनल लाइफ है वो किसी के भी साथ डिस्कस नहीं करनी है। खास करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का बखान कहीं पर भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे लोगों की नज़र आपको लगती है। आपके इमीडिएट परिवार वालों के साथ डिस्कस करना अलग बात है, लेकिन किसी को भी आउटसाइडर को ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए। केतु यहाँ पे बैठ के व्यक्ति को अपमानजनक स्थितियों में डालता है, तो इससे बचने का एक उपाय है कि आप काले कुत्ते को हर बुधवार को खाना खिलाइए, या फिर आप कंबलों का दान कीजिए, क्योंकि केतु हर चीज में तीन तीन चीजों से जुड़ा है। अगर सप्तम भाव में हो तो कई ऐसे लोगों की तीन तीन पति या पत्नी होते हैं, पंचम भाव में हो तो तीन तीन बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे केतु बैठ के हर व्यक्ति को कंफ्यूज करने का काम करता है, अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। तो यहाँ पे भी आपको या तो आप काले कुत्ते को खाना खिलाइए बुधवार को, या फिर आपको 3 कंबलों का दान कीजिए। ये इस केतु की रेमेडी होती है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर केतु 1.5 साल से बैठा है तो अक्टूबर एंड में निकल ही जाएगा, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे रहेंगे 16 सितंबर तक, और ये 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ के ही आपके लिए लाभ कमाने के कई मौके बनाएगा। अगर फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो 5 से 7 सितंबर तक का समय कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से सबसे अच्छा है, लेकिन ये जो धन आएगा ये आपको मेनली आपके कार्यस्थल से ही आता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिला के अगर आप सितंबर का महीने को देखेंगे तो ये पूरा महीना आपके लिए प्रोफेशनल तरक्की के हिसाब से सबसे अच्छा है। तो ये आप समरी थी इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत